हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको शुभकामनाएं। मैं प्राची भोसले, प्रेसिडेंट और फाउंडिंग मेंबर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी। हम एक पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एएस के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम हमारे पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स को उनकी इस जर्नी में सहायता प्रदान करते हैं और गाइड भी करते हैं। हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हम हर महीने विभिन्न टॉपिक्स पर एक सीरीज ऑफ पेशेंट एजुकेशन वेबिनार्स रखने जा रहे हैं। इस बीमारी से जुड़े कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस को भी हम क्लियर करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं आप सबके साथ एक और खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ। ASWS के सेक्रेटरी एंड फाउंडिंग मेंबर नागराज, इन्होंने कल आयन मैन ट्रायथलॉन 15 आवर्स 25 मिनट्स में कंप्लीट किया। आयन मैन ट्रायथलॉन में आप पहले 3.86 किलोमीटर स्विमिंग, फिर 180.25 किलोमीटर साइकिलिंग और फिर 42.20 किलोमीटर मैराथन दौड़ते हैं एक ही दिन में। इसे दुनिया का सबसे कठिन वन डे स्पोर्टिंग इवेंट माना जाता है। हमारे जो सेक्रेटरी हैं और एएस वॉरियर हैं नागराज, इन्होंने कजाकिस्तान में अपने इंडिया का झंडा फहराया और जो नामुमकिन है उसे मुमकिन भी कर दिखाया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस नागराज। आज का हमारा विषय है स्टेरॉइड्स एंड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इस कार्य में हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मानंद। Dr. Dharmanand is trained in India and UK and is practicing in Manipal Hospitals, Bangalore. He is the president of Indian Rheumatology Association. Thank you, Dr. Dharmanand, for joining us. I request you to say a few words. Good evening. Happy Independence Day. And we all have come from celebrating Independence Day in various forms. And I congratulate Ankylosing Spondylitis Welfare Society for organizing this very interesting webinar series. And I will, as the president of Indian Rheumatology Association, my greetings from IRA. And there is a huge need for patient support groups. Until recently, patient support group concept was relatively alien to our country. And it is pleasing to know that in front of our eyes, in the last 4-5 years, there has been a flurry of activity in patient support group programs in various disease aspects and various disease related patient support groups as well. And as a doctors, we pay lip service many a times to patient education because of limited time. And many of the doctors also are not very well trained in imparting public education and imparting all the knowledge which a patient wants to know. So many a times after the diagnosis and the treatment was given, most patients feel a little bit frightened and all alone. Support groups can easily step into this gap and share the experience and also reassure them that these are the disease. They are not alone in the world with this uncommon, unheard disease. And also that the treatment which they were taking is working and how well they are doing and what are the issues they face with access and also the side effects of the medication. This can be shared and it can, once it is shared, it can be very reassuring. So this patient support groups play a huge role in patient care along with doctors and of course all other players. Coming to the current topic, the topic is on steroid in ankylosing spondylitis. There are 3 great fears most people have: fear of dark, or fear of ghost, or fear of devil, whatever you call it, fear of unknown. The second fear is fear of public speaking. And the last fear is fear of steroids. And most of the educated people are very scared of steroid due to, what should I say, a lot of information happening in multiple medias. And they're all scared that steroids
will be given to them, and steroids are very harmful without knowing anything about it, because we don't know anything about devil or dark, but we are scared. So steroid is like that. So without adequately understanding what is steroid and why it is given, many patients are scared, and they also feel that all the drugs given by rheumatologists are steroids. Even after 3-4 years of taking drugs like methotrexate or sulfasalazine, people ask, when are you going to stop my steroid? So we feel little bad that we were not able to convince them that what we had been giving them for the last 3-4 years are not steroids. And of course, steroids are also misused and abused in the community. And it is also freely available over the counter. And so a lot of people inadvertently take steroids in some form or other. And it can be partially useful in some of the peripheral arthritic symptoms, or when the pains are occurring more, not in the spine, but away from the spine. There is a small and limited role of steroid in ankylosing spondylitis, about which Professor Vinod Ravindran is going to allude to. And so I'm sure you are going to have a wonderful evening today, and we'll be able to clarify the doubts from the experts. And as an IRA president, I assure support from Indian Rheumatology Association as a knowledge partner. And also, we would like to partner you in your struggle against access of medications, how to bring down the cost of the medication, how to include ankylosing spondylitis in insurance and other government programs. With these few words, all the best for your evening, and also all the best rest of your life. Thank you very much for this opportunity to be amongst you today on this glorious Independence Day. Thank you. Sorry, I could not. Thank you, Dr. Dharmanand, for your support and your contribution for us. आज के विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और भी जुड़े हैं हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर विनोद रविंद्रन. He is a consultant rheumatologist with extensive academic achievements to his credit. He has received his training in UK. He is the secretary-elect of the Indian Next slide. Association. Yes, sorry. He is in fact an excellent orator in Hindi and English. Also, we have with us Dr. Praveen Patil, who is a founding member, trustee, and a medical advisor for ASWS. He has been our strong pillar of strength for our work that we do. I would now request Dr. Ravindran to enlighten us about today's topic. Namaste, AS Warriors. सबसे पहले तो धन्यवाद एंकरेजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर प्रवीण पाटिल, प्राची भोसले मैम और हमारे इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर धर्मानंद, जिन्होंने ये जो ओकेजन है उसको सफल करने की एक शुरुआत की है. और आज का दिन कई मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट है. और जैसे मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा भी कि ये शायद आज से कोई और बेहतर दिन हो नहीं सकता जब हम इस तरह की पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट अवेयरनेस की शुरुआत करें. तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. वो है स्टीरॉइड्स एंकरेजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में. तो डॉक्टर प्रवीण ने जो है आप लोगों के जो बहुत ही सामान्य रूप से जो पूछे जाने वाले जो सवाल हैं वो कुछ पहले मुझसे शेयर किए थे. उससे मेरा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि जो मैंने ये प्रेजेंटेशन जो बनाया है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वो आप सभी लोगों को
ये जो कॉमन जो है जो जिस कहते हैं कि प्रचलित जो भ्रांतियां हैं, जो कंफ्यूजन हैं, जो डाउट्स हैं, जो शुभे हैं, वो दूर हों और हम इस मेडिसिन जो स्टीरॉइड्स है उसका एंकारेजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में करेक्ट रूप से स्थान समझ पाए। तो आप सभी लोगों को जैसा मालूम होगा कि जो रोमेटोलॉजिकल जो डिसीजेस हैं, जैसे गठिया बाह्य रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, और भी कई तरह की बीमारियां हैं, इसमें पहले बहुत दिक्कत होती थी जब आजकल जैसी दवाइयां जो अब उपलब्ध हैं वो पहले नहीं थी। तो आज से कई साल पहले 1948 में स्वतंत्रता के 1 साल के बाद ये अमेरिका में जो है ये स्टीरॉइड का यूज जो है सबसे पहले गठिया बाह में एक प्रयोग किया गया और ड्रामेटिक रिजल्ट्स रहे इस पेशेंट को। और वहां से शुरुआत हुई कि स्टीरॉइड्स जो हैं, आप देखेंगे कि उस दिन के पहले और बाद भी बहुत सारी दवाइयां रोमेटोलॉजी में आई, लेकिन स्टीरॉइड जो हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में नहीं, लेकिन बाकी जो बीमारियों में उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर आप देखें, ये मैं यहाँ पे गठिया बाह का उदाहरण दे रहा हूं कि पहले जब दवाइयां नहीं थी इसकी माफिक, तो पहले एस्प्रिन देते थे, फिर बाद में सोचते थे कि स्टीरॉइड्स दें या ना दें, और उसके बाद सोचते थे कि और जो दवाइयां हैं जैसे हम जिक्र करेंगे सल्फासलाजीन या मिथोट्रेक्सेट है वो दें तो कब दें। स्टीरॉइड जो है रोमेटोलॉजी में कई तरीके से यूज होती है। जैसे आपको पता होगा कि हाँ बिल्कुल खाने की टैबलेट्स होती हैं और जो है इसके इंजेक्शंस भी लगते हैं, और ये जो है ड्रिप की तरह भी दी जा सकती है। ये जो है जोड़ों के अंदर भी पहुंचाई जा सकती है इंजेक्शन के रूप में, और कई बार जो है ये खासकर जैसे शोल्डर और एल्बो की प्रॉब्लम में ये जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे भी लगाई जा सकती है। तो स्टीरॉइड एक दवाई के रूप में कई डिफरेंट तरीके से रोमेटोलॉजी में यूज की जाती है, और ये इसकी एक बहुत एक यूनिक चीज है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी दवाई होगी जो इतनी डिफरेंट तरीकों से यूज की जा सकती है। और ये भी आपको पता होगा कि स्टीरॉइड्स में ही जो हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्टीरॉइड्स होते हैं। जो एक बहुत कॉमन जो है, जो सब हमें पता है, वो है प्रेडिसोलोन। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्टीरॉइड्स हैं। ये डिफर करते हैं, इसमें अंतर होता है कि कौन सा ज्यादा लंबे समय तक काम करता है, कुछ शॉर्ट समय में काम करता है, और इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स भी जो हम बात करेंगे आगे वो भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो मैं जो कह रहा था कि स्टीरॉइड का जो यूज है रोमेटोलॉजी में, बहुत सारी जो रोमेटोलॉजिकल बीमारियां हैं उसमें एक तो क्या हो गया कि चॉइस बहुत हो गई, आपको छोटे ड्यूरेशन से लंबे ड्यूरेशन काम करने वाले स्टीरॉइड्स हो गए। फिर जो है देखा कि कई डिफरेंट तरीकों से दी जा सकती है, तो वो उसकी एक खास बात हो गई। फिर एक ये जो एबिलिटी होती है, ये जो खास चीज जो स्टीरॉइड की होती है, तो वो क्या करता है कि जो जितनी सूजन है जोड़ों के अंदर या और भी जैसे आंख में मान ली सूजन है, उसको क्या एकदम कम कर देगा और बहुत तेजी से कम करेगा। और जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में भी हम देखते हैं कि सर्जरी करके जो कैंसर का जो बल्क है उसको घटा देते हैं, या फिर हम कीमोथेरेपी की दवाइयां देके जो कैंसर को श्रिंक कर देते हैं। लगभग उसी तरह की कोई चीज जो है स्टीरॉइड रोमेटोलॉजी में भी करता है कि वो जो जो जोड़ों के अंदर की जो सूजन है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसको बिल्कुल कम कर देता है और फास्ट करता है। तो पेशेंट को आराम मिल जाता है, और अगर उस समय जो है दूसरी दवाइयां चालू हो गई हैं, उन्हें समय मिल जाता है काम करने के लिए। तो
इन 3-4 चीजों के कारण स्टेरॉइड्स बहुत एक पॉपुलर दवाई है। लेकिन जैसे डॉक्टर धर्मानंद ने कहा कि न केवल डॉक्टर्स में, बल्कि या ऐसा करके न केवल पेशेंट्स में, न केवल मरीजों में और उनके साथ जो जुड़े लोग हैं उनमें, बल्कि डॉक्टर्स में भी ये कंफ्यूजन है कि ये स्टेरॉइड्स वाकई में मतलब अच्छे हैं कि बुरे हैं, हमें इन्हें यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, किस ड्यूरेशन में करना चाहिए, किन चीजों से हमें वाकिफ होना चाहिए, साइड इफेक्ट्स के बारे में। और मतलब तो ये जो कंफ्यूजन है ये बहुत ही वाइड स्प्रेड कंफ्यूजन है। तो होपफुली आगे के 10-1 मिनट में हम काफी सारे जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर पाए, ऐसी उम्मीद के साथ में मैं आगे बढ़ता हूं। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्टेरॉइड्स है, आपने कहा कि भाई ये जो है इसमें एक यूनिक एबिलिटी है और तरह तरह के रूपों से दी जा सकती है, तो हमारे जो बाकी जो दवाइयां हैं, सल्फासलाजीन हो गया, मीथोट्रेक्सेट हो गया, और आजकल जो नई तरह की दवाइयां जो यूज की जाती हैं, बायोलॉजिक्स जिसे कहते हैं, वो स्टेरॉइड्स हैं क्या? तो उसका आंसर है कि नहीं, वो स्टेरॉइड्स नहीं, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी की दूसरी दवाई है। और अभी जो एक नई दवाई जो है टोफासिप्निब, जो कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी यूज हो रही है, उसके बारे में भी एक ऐसा कंफ्यूजन है कि क्या वो भी एक स्टेरॉइड्स है, क्योंकि वो एक टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, बाकी दवाइयां अभी टैबलेट फॉर्म में है, लेकिन बायोलॉजिक जो है इंजेक्शन है मोस्टली। तो उसका भी उत्तर यही है कि नहीं, वो स्टेरॉइड नहीं है। अब ये एक बड़ा लंबा टेबल आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो समझने की जो चीज है वो ये है कि आप देखेंगे कि स्टेरॉइड जो है वो यहाँ पे है, ये आपके सारे जो दूसरी दवाइयां हैं, जैसे एक था पूछा कि भाई मीथोट्रेक्सेट, तो वो यहाँ हो गया, और ये काफी सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स यहाँ पे हो गए। और आप देख सकते हैं कि स्टेरॉइड्स जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से कंप्लीटली डिफरेंट लिस्टिंग है उसकी। तो वो स्टेरॉइड्स जो है और किसी दवाई से सिमिलर नहीं है, अलग अलग दवाइयां हैं ये सारी। और इस स्लाइड में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये स्टेरॉइड्स जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा दबा देता है, क्योंकि जो बीमारियां होती हैं, रोमेटोलॉजी की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो हमारे जो इम्यून सिस्टम में, हमारा रोग प्रतिरोध जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ होने के कारण होती है। तो स्टेरॉइड जब हम यूज करते हैं तो वो सिस्टम क्या है, दब जाता है, और यही वही मौका है जहाँ पे हम दूसरी दवाइयों को यूज करते हैं, जिससे कि ये इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी जो है वो करेक्ट हो सके। तो करेक्ट करना और दबाना जो है अलग अलग चीजें। तो स्टेरॉइड्स क्या है, दबा देता है। ये एक और कारण है कि इसको हम ज्यादा समय तक नहीं यूज करें तो अच्छा रहेगा। और इस स्लाइड में मैंने और भी क्लियर किया है कि जो कॉमनली जो यूज होती हैं, जैसे कहें कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मीथोट्रेक्सेट और सल्फासलाजीन, ये स्टेरॉइड्स नहीं हैं। और बायोलॉजिकल जो दवाएं हैं, इन्फ्लिक्सिमैब हुआ, एडालिमुमैब हुआ, इटानसेप्ट हुआ, वो भी बायोलॉजिक्स नहीं है। और जो नए दवाइयां जो आई है टोफासिप्निब, वो भी स्टेरॉइड्स नहीं है। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट तरह की दवाइयां हैं, और उनका स्थान भी डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों में डिफरेंट है। तो अब जो मेन जो कंफ्यूजन आता है वो है कि स्टेरॉइड्स की साइड इफेक्ट्स का। तो स्टेरॉइड के जिसको कहते हैं दुष्प्रभाव क्या है। तो कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे थे कि ये अगर हम इसको कम ड्यूरेशन में रहें तो क्या साइड इफेक्ट होगा, और ये कब चालू होता है, और ये मेन और वुमेन में, आदमियों और औरतों में क्या इसके इफेक्ट दूसरे दूसरे होते हैं, और दूसरी कंडीशंस को क्या ये और भी खराब कर सकता है स्टेरॉइड का यूसेज। तो लेट अस सी। तो ये इस कार्टून में आप देखें कि लिटरली
जो सिर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक के जो है स्टेरॉइड्स जो है दुष्प्रभाव कर सकता है। तो एक जो चीज मैंने जो बाल हैं जो है वो थिन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, और इमोशनल डिस्टरबेंस, साइकेट्रिक डिस्टरबेंस, जल्दी गुस्सा आना, नींद नहीं आना, और इमोशन हो जाना, भावुक हो जाना, रोने लग जाना, ब्रेन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो है हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं, जैसे थायराइड हुआ या और भी दूसरे हार्मोन्स हुए, उनका जो है वो सिस्टम जो पर्टिकुलरली जो हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह सिस्टम को जो कंट्रोल करता है, वो गड़बड़ हो जाना, ज्यादा दौरान खाते हैं तो मुंह में सूजन आ जाना, जैसे कहते हैं मून फेशियल्स, और जो है हड्डियों का जो है हड्डियां कमजोर हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, फैट एक्युमुलेट होता है, तो ये जो पीछे जो है यहाँ अपने गर्दन के नीचे पीछे की तरफ जो है फैट का एक कलेक्शन दिखाई देता है, मोटापा बढ़ जाना, जो न केवल बाल बल्कि स्किन भी थिन हो जाते हैं, तो फिर उसके नीचे जो है ये ब्लीडिंग इजीली हो जाती है, तो वो दिखता है। और जो है औरतों में मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स हैं, डेट्स जो हैं वो डिफर होती हैं, या मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं है, मांसपेशियों की वीकनेस, बैठ के खड़े होने में दिक्कत है, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत है, और जो है स्किन के प्रॉब्लम्स देखे, डायबिटीज, डायबिटीज की शुरुआत जो है स्टेरॉइड के लॉन्ग टर्म यूज से हो सकती है। अगर घाव हो गए तो वो जल्दी भरेंगे नहीं, वो एक और साइड इफेक्ट देखा जाता है। तो लिटरली जैसे मैंने कहा, ये तो एक छोटी लिस्ट है इस दवाई की साइड इफेक्ट्स की। मतलब इसी पे ही कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, और आज जो है हमें 5 घंटे और सिर्फ साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो स्टेरॉइड है, आपको मालूम है किसी भी दवाई की जैसे ये हमारे बॉडी के जो सिस्टम है उसको यूज करती है अपना या तो माफिक असर दिखाने के लिए या साइड इफेक्ट दिखाने के लिए। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये स्टेरॉइड का सेफ डोज क्या होता है और कितने लंबे दौरान तक हम इसको दे सकते हैं, और या कहते हैं कि बहुत उसको बड़ी हाई डोज स्टेरॉइड दे दी तो उसका मतलब क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि किसी भी दवा के तरह स्टेरॉइड भी जो है अपने बॉडी के सिस्टम को यूज करती है अपना जो है या तो माफिक या साइड इफेक्ट बताने के लिए। तो इस कार्टून में हम देख सकते हैं कि जब हम 7.5 या 5 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं तो वो तो हम उसको कहते हैं कि भाई बॉडी तो इतना बनाता ही है डेली, तो वो एक जिसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल डोज हो गई। तो अगर हम उस डोज में यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं लो डोज, क्योंकि उसमें जो है हमें फायदे ज्यादा हैं और नुकसान बनिस्बत कम है। लेकिन हमने बहुत ज्यादा यूज किया, 30 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम के बीच में स्टेरॉइड देने की अगर जरूरत पड़ी या किसी कंफ्यूजन में किसी ने ले लिया, तो उसमें बॉडी जो है स्टेरॉइड का असर दिखाने के लिए गलत सिस्टम को यूज करना चालू कर देगी। उसमें होगा ये कि जो है हमें नुकसान ज्यादा होंगे और फायदे कम। तो ये एक समझने वाली बात है स्टेरॉइड के डोज के बारे में। अच्छा, कई ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे स्टेरॉइड हमें बहुत जो है शीघ्रता से यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि उस मरीज को बहुत जल्दी से फायदा मिले। तो उसमें हाई डोज में स्टेरॉइड यूज किया, माना हमें मालूम है कि वो साइड इफेक्ट करेगा, लेकिन हम हाई डोज बहुत लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। तो उदाहरण के रूप में ये हम जो है 4 हफ्ते के आसपास यूज कर, फिर उसके बाद हम उसको कम कर करके, जैसे मैंने पहले कहा, फिजियोलॉजिकल डोज में 5 से 7.5 mg प्रेडनिसोलोन के रूप में ले आए, तो फायदा भी मिल गया और कम भी हो गया
और जो है फिर बाद में हमें उतनी चिंता साइड इफेक्ट की नहीं रहेगी। लेकिन पर्टिकुलरली घटिया बहाव में जब हमें यह है कि बहुत अर्जेंट नहीं है, तो वहां पे हम लो डोज में यूज करते हैं, मतलब 5-7.5 मिलीग्राम जो है प्रेडनिसोलोन। और पर्टिकुलरली जो दूसरी दवाइयां माफिक काम नहीं कर रही हैं, तो थोड़ा सा कई बार स्टीरॉयड भी यूज करना पड़ता है, लेकिन वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपके डॉक्टर के लिए। इसमें भी यही स्लाइड में यही है कि डिफरेंट बॉडी के सिस्टम हैं, 2 सिस्टम हैं। आपने स्टीरॉयड दिया और किस तरह का स्टीरॉयड दिया, वो इसमें से एक सिस्टम यूज करेगा। अगर वो ये सिस्टम यूज करता है जो नाम दिया है इसका ट्रांसरिपिशन, तो फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। अगर ये यूज किया तो फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। तो जब आपके डॉक्टर साहब जो स्टीरॉयड यूज करते हैं रूमेटोलॉजिकल कंडीशन में, तो ये अवेयरनेस लेके करते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसको ओवर द काउंटर नहीं खरीदें, नहीं खाएं, और जिस ड्यूरेशन में और जिस डोज में इसको प्रिस्क्राइब किया है आपके डॉक्टर ने, ये बिल्कुल इम्पेरेटिव है कि आप उसको फॉलो करें। और भी साइड इफेक्ट्स के बारे में बातें हैं कि कुछ साइड इफेक्ट्स जो हैं वो डोज पे डिपेंड करता है कि हाई डोज अपन ने बहुत ज्यादा समय तक के लिया तो हमें ये पूरी लिस्ट जो है आप देख सकते हैं कि स्किन भी हो जाएगा, पाँव भी सूज सकते हैं, और जो है मुंह सूज जाएगा, पाँव में सूजन आ जाएगी, क्या बोलते हैं, नींद की डिस्टर्बेंस, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो ज्यादा डोज, ज्यादा ड्यूरेशन, ज्यादा नुकसान। कुछ साइड इफेक्ट्स इसके ऐसे होते हैं कि आपने दिया और अगर उस आदमी की टेंडेंसी है तो उसको साइड इफेक्ट होना ही होना है, डोज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको ओवर द काउंटर तो लेना ही नहीं, क्योंकि अगर आपकी टेंडेंसी है और आपने ओवर द काउंटर इसको स्टेरॉइड लेके खाया, आपको कुछ फायदा तो होगा, लेकिन फिर आपका मोटापा बढ़ना है तो बढ़ेगा ही। अगर आपको आंखों में ये इसका मोतियाबिंद होना है तो वो तो हो नहीं है, फिर उसको रोक नहीं सकते। तो बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें जो है असेस हों और प्रॉपरली ये स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब हो, जो भी आपके रूमेटोलॉजिकल कंडीशन। एक दो चीजें क्वेश्चन थे बड़े अच्छे कि कैसे इसको स्टेरॉइड अगर ऐसा ही है तो हम कैसे इसके साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो कुछ नए टाइप के स्टेरॉइड्स जब आएंगी, अभी हमारे पास जो है उसमें अगर स्टेरॉइड्स हमें सही यूज करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो डॉक्टर हैं उसके सुपरविजन में ये स्टेरॉइड होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए यूज करें और सबसे छोटी डोज में यूज करें, तो ड्यूरेशन भी छोटा हो और डोज भी छोटी हो। और दूसरी, अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर पहले ही है या डायबिटीज पहले ही है, तो वो भी इसके स्टेरॉइड के यूज के कैलकुलेशन में लेना पड़ता है। और एक आपके डॉक्टर साहब के सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है कि ये तो शुरुआती एक मेडिसिन है, कुछ भी कह लें, स्टेरॉइड जो है एक शुरुआती मेडिसिन ही है, और बाद में क्या होगा तो वो बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जो आपके डॉक्टर के सुपरविजन में इसको वो चालू करेंगे और वो एट द सेम टाइम जो है दूसरी दवाइयां भी चालू करेंगे, जिससे स्टेरॉइड का जो शुरुआती रोल खत्म हो जाएगा और बाकी जो दवाइयां चलती रहेंगी। तो ये जो कुछ तरीके हैं जो कि हमें फॉलो करना चाहिए स्टेरॉइड का रिस्क कम करने के लिए। अब बात आती है स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस पे, तो जो कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इसका एक अहम वो है रूप है, बीच में दिखाया है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और भी जो है 3-4 दूसरी तरह के जो भी रूमेटोलॉजिकल बीमारियां हैं वो भी ये स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में आता है। तो इसकी जो खास बात, जैसा आपको पता ही होगा कि इसमें जो है ये स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट एक बहुत प्रोमिनेंट होता है, और बाकी साधारण गठियाबाज जैसे इसमें हाथ और पांव के दूसरे जोड़ों में भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें स्पाइन में इन्फ्लेमेशन होगा, जो कि गठियाबाज में नहीं दिखा। लेकिन इसमें एक छोटे प्रोपोर्शन के लोगों को दूसरे जॉइंट्स में भी हो सकता है। और इसमें ये जीन जो होता है उसका जो है
होना नहीं होना बहुत एक इम्पॉर्टेंट सी चीज है। तो फिर से ये जो स्पॉन्डिलर आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइन जो है, आपका रीढ़ की हड्डी का इन्वॉल्वमेंट जो है, वहां पे ये सूजन आती है, वो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसे मरीजों को पेरिफेरल जॉइंट्स में, दूसरे हाथ और पांव के जॉइंट्स में भी दिक्कत आ सकती है। और जैसा आपको पता होगा तो उसमें से कुछ लोगों को जो है पेट की कुछ बीमारियां होती हैं, आंखों में जो है ये आ सकता है। तो ये 3 सिचुएशन जो हैं, पेरिफेरल जॉइंट्स, आई की प्रॉब्लम और कुछ हद तक पेट की प्रॉब्लम, ये इस बीमारी के ऐसे रूप हैं जहां पे स्टेरॉइड्स का यूज हो सकता है और किसी में नहीं। अगर किसी को, तो क्या है हमारे जिसको कहते हैं ना कि गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को हम क्यों ट्रीट करना चाहते हैं। एक तो ये है कि हम मरीज के जो सिम्टम्स हैं, जिस कारण से उसे परेशानी हो रही है, उसको हम कम करना चाहते हैं। उन्हें चलने फिरने में, उठने बैठने में जो दिक्कत हो रही है, उसको हम कम करना चाहते हैं। और जो रीढ़ की हड्डी में और दूसरे जॉइंट में ये अगर सूजन रहेगी तो जो डैमेज हो सकता है उसको हम रोकें। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। अब उसमें आप इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में कि स्टेरॉइड का जो यूज रखा है वो लिखा है लोकल स्टेरॉइड, ठीक है। तो ये लोकल स्टेरॉइड कैसे, जैसे कि किसी मरीज को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और उसको माना कि घुटने में सूजन आ गई, तो अगर वहां आपके डॉक्टर उसमें एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा देते हैं या एक एंकल जॉइंट पे लगा देते हैं, तो वो तो हो गया लोकल स्टेरॉइड का यूज, जो कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत माफिक यूज है। लेकिन यहाँ पे भले बीमारी की शुरुआत हो या और बढ़ गई हो, तो वहां पे ये स्टेरॉइड जो है टैबलेट के रूप में या ड्रिप के रूप में नहीं दी जाती। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप गठिया बाह देखें तो उसमें शुरू से ही टैबलेट स्टेरॉइड जो है यूज की जाती है दूसरी दवाइयों के साथ में, और दूसरी दवाइयां जैसे असर करना चालू करते हैं उसको हम कम करके बंद कर देते हैं। लेकिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ऐसा नहीं है, उसका यूज लोकल ही है। अगर उन्हें आंखों का इन्फ्लेमेशन है तो वहां पे स्टेरॉइड ड्रॉप्स के रूप में और इवन टैबलेट्स के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि वो बहुत एक पेनफुल कंडीशन होती है। अगर उन्हें जो है हमारे मांसपेशियों के आखिरी के भाग में जो इन्फ्लेमेशन आता है, जो कि एल्बो में या शोल्डर में होता है या पाँव में जो प्लांटर फेशिया में होता है, वहां पे स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा सकते हैं, वहां पे ये बहुत काम करता है। तो कुल मिला के एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्टेरॉइड यूज करने के जो मौके हैं वो बहुत कम हैं, और ये हमेशा हमेशा आपके डॉक्टर साहब के सुपरविजन में ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ तो इंजेक्शंस हैं और कुछ आंखों का मामला है, तो डेफिनेटली जो है उसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा सावधान रखने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से इनका तो मैंने आंसर दे दिया कि स्टेरॉइड जो है ट्रीटमेंट में यूज होता है। हाँ होता है, लेकिन वो लिमिटेड सिनेरियोज मैंने आपको बताए। स्टेरॉइड इंजेक्शंस जो है बिल्कुल यूज होता है। और हाउ मच स्टेरॉइड्स, तो जैसे टैबलेट वाला स्टेरॉइड का तो कोई यहाँ पे रोल है नहीं, तो वो तो डेफिनेटली आप नहीं लेंगे। और बाकी अगर आंखों के लिए या और किसी सिनेरियो में आप यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर साहब हैं वो डिसाइड करेंगे आपके लिए कि कितना ड्यूरेशन के लिए आपको ये लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैं जो है अब डॉक्टर प्रवीण और प्राची मैम के से जो है हम देखेंगे कि और क्या क्वेश्चंस हैं आपके। और ये सिर्फ ये हाईलाइट करने के लिए पुस्तक हमने लिखी, इसको एडिट किया। इंडिया भर से काफी जो है डॉक्टर्स जो है लेखक के रूप में हमसे जुड़े। ये कई चीजें जो आज हमने
डिस्कस किया वही चीजें हैं इस बुक में भी। और ये जो बुक है ये डॉक्टर्स के लिए लिखी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कंफ्यूजन्स हमने आज डिस्कस किया आपसे, ये कंफ्यूजन केवल पेशेंट्स में भी नहीं बल्कि डॉक्टर्स में भी है। तो आज का ये जो मौका मुझे जो मिला आपसे संवाद करने का, होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके जो कंफ्यूजन है, जो डाउट्स हैं स्टेरॉइड्स के बारे में, उसको कुछ हद तक दूर करने के लिए शायद सफल रहे होंगे। थैंक यू डॉक्टर रविंद्रन, आपने इतनी डिटेल में हमें समझाया, इसके लिए। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमें काफी सवाल भी आए हैं। हमारे साथ हमारे ASWS के वाइस प्रेसिडेंट एंड फाउंडिंग मेंबर मिस्टर मुकेश पाटिल जी भी हैं, और हमारे कोऑर्डिनेटर भूषण घाटे जी भी हैं, जो हमें ये सारे सवाल जो हैं उन्हें मैनेज करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। मैं आप दोनों डॉक्टर्स, डॉक्टर रविंद्रन और डॉक्टर पाटिल से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे जैसे कुछ सवाल हो आप उनका प्लीज जवाब दें। क्या मैं शुरू करूं क्वेश्चन एंड आंसर्स? श्योर, थैंक यू डॉक्टर विनोद रविंद्रन। डॉक्टर विनोद रविंद्रन एकेडमिक्स में काफी एक्टिव है, और वो डॉक्टरों के लिए, रोमेटोलॉजिस्ट के लिए मेडिकल जर्नल में कैसे लिखना चाहिए इसका वर्कशॉप लेते हैं। बट आज उनका हिंदी सुनकर आई थिंक कि उन्होंने हिंदी भाषा में कैसे मेडिकल टॉक देना चाहिए, इस पर वर्कशॉप लेना चाहिए, ऐसे मैं उन्हें गुजारिश करूंगा। वेरी वेरी गुड हिंदी विनोद, ग्रेट। So yeah, over to you, Prachi. थैंक यू डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर विनोद, आपसे एक पूछना था कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि उन्हें जब पेन वेन होता है, उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए एंड वो स्टेरॉइड्स लेने के बाद उन्हें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, सो दे बिलीव दैट द स्टेरॉइड्स हैव कॉज्ड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। ये जो तो इसमें कंफ्यूजन तब आता है कि एक्चुअली में जो दर्द के कारण जो है स्टेरॉइड ली गई है, तो वो दर्द जो है वो है शुरुआत एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, कि रीढ़ की हड्डी का दर्द हो गया या और किसी दूसरे जॉइंट्स का दर्द हो गया। तो टाइमिंग हमको वो जोड़ों के प्रॉब्लम की शुरुआत से मानना चाहिए, स्टेरॉइड के यूसेज से नहीं। और स्टेरॉइड अगर कुछ भी करेगा इवन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, तो वो उसका तो काम ही है कि वो इम्यून सिस्टम को डैम्पन डाउन करेगा, वो जो है बीमारी नहीं करेगा। वो बीमारी तो वो करेगा जिसकी लिस्ट जो है हमने अभी चर्चा की। थैंक यू डॉक्टर, बिकॉज यही मिसकंसेप्शंस रहते हैं कुछ पेशेंट्स में, दैट दिस हैज कॉज्ड इज एक्चुअली दैट इज नॉट द रीजन, दैट मतलब हमने वो पेन को ही शुरुआत समझ के लेना चाहिए एक्चुअली। एंड दूसरा, लोग जानना चाहते हैं कि अगर स्टेरॉइड्स लेना चालू किए, सो एक्चुअल रिलीफ कब से मिलना चालू हो जाता है एएस में? हाँ, ये तो जो स्टेरॉइड्स जो है वो जो कि है मतलब एक तो देखिए, दर्द की दवाइयां दो तरह की होती हैं। एक होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, सो जो नप्रोसेन होता है या इंडोमिथासिन जो होता है, वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। तो दूसरी कैटेगरी है वो स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। तो ये एक बेसिस होता है जहां पे हम स्टेरॉइड लेते हैं किसी भी कंडीशन में, एक्यूटली पेनफुल हो, एंक्सपाउंड हो, कुछ भी हो, तो शुरुआती में थोड़ा आराम तो मिलता ही। लेकिन पॉइंट यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो है हमारी बीमारी किस कारण से हुई और क्या करेगी, उसमें स्टेरॉइड कुछ नहीं करता। है ना? तो और उसके यूसेज जो है हमने देखा कि बहुत शुरुआत मतलब डे 1 से, या आप कहते हैं कि मिनट 0 से स्टेरॉइड का यूज जो है प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये फायदा करेगी या नहीं करेगी वो क्वेश्चन अहम नहीं है। जो सावधानी बरतनी है कि ये दवाई जो है इसके लिए माफिक नहीं है, मतलब ये बीमारी के लिए माफिक दवाई नहीं, कौन सी, ये हम कहना चाहते हैं। बराबर है। डॉक्टर पाटिल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मिस्टर मनु कुंडू जो हैं, वो हमें पूछते हैं कि बायोलॉजिक इंजेक्शंस, बायोलॉजिक टैबलेट्स और स्टेरॉइड्स, इनमें क्या मतलब कंपैरिजन क्या है, एंड कैसे डिसाइड करें कब क्या लेना है, कैसे करना है? ओके, सो बहुत इजी सवाल है, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, कंप्लीटली दो अलग अलग चीजें हैं। ये पूछना है कि जैसे राम और अर्जुन में क्या सिमिलरिटी है, राइट?
तो कम्प्लीटली डिफरेंट चीजें हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर है। तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये दोनों दवाइयाँ अगर सही समय पर यूज किया तो काफी यूजफुल हो सकती है, इंक्लूडिंग स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स का काफी बैड नेम हो गया है कि पेशेंट भाग जाते हैं स्टीरॉइड का नाम निकाला तो, बट उसकी वजह से बहुत नुकसान भी हो जाता है। मैंने बहुत बार देखा है पेशेंट्स को जस्ट बिकॉज स्टीरॉइड फोबिया है, डरते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट लेना नहीं चाहते हैं। तो रिमेम्बर, कोई भी दवाई सही है या गलत है ये उसके ड्यूरेशन पे, कितने समय तक यूज कर रहे हैं, कौन से डोज में यूज कर रहे हैं, इस पर डिसाइड होता है। और मैंने जो एक खास चीज अपने इंडियन पेशेंट में नोट की है, मेन प्रॉब्लम है कि हम वे अप नहीं करना चाहते ऑप्शंस। हम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। हम सारा रिस्क डॉक्टर पर डालना चाहते हैं, हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते बहुत बार, इस वजह से, या हम बहुत एस और नो में सोचते हैं। वैसे नहीं सोचना चाहिए। हमें एक एबिलिटी डेवलप करनी है कि हम डॉक्टर के साथ अपनी हेल्थ के लिए डिसीजन ले सके, कि डिस्कस कर सके ये दवाई हमारे लिए सही है नहीं है और क्या कारण है। तो इस तरह से आपका डर कम हो जाएगा और आपकी बीमारी भी ठीक होने में मदद हो जाएगी। और जैसे अभी आपने पूछा था कि क्या स्टीरॉइड से एएस होता है क्या। कोई भी दवाई बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा भी लगता है। तो कोई घर पे बैठ के ऐसा दवाई नहीं बनेगा कि 10 साइंटिस्ट बैठ गए और चलो आज ऐसी दवाई बनाते हैं जिससे लोगों को स्पाइन का गठिया हो जाएगा। उसके लिए कहीं से फंडिंग भी नहीं मिलेगा। दिस इज जस्ट वेरी बेसिक, राइट। तो हार्म करने के लिए दवाई कभी नहीं बनाई जाती है। सो रिमेम्बर, दवाई बनाने का इंटेंशन काफी क्लियर होता है। ऑफ कोर्स कुछ चीजों के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो एंड आई गेस ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतना ही लेना जरूरी है। जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि चलो डॉक्टर ने ये बोला था, वापस मेडिकल वाले को दे दिया और वापस लिया, मे बी दैट कैन लीड टू फर्दर साइड इफेक्ट्स देन एनीथिंग एल्स। डॉक्टर रविंद्रन, आपके लिए एक बेनी फ्रांसिस जी ने पूछा है कि स्टेरॉइड क्या परमानेंट सॉल्यूशन है एएस के लिए, उसके बगैर फिर कुछ नहीं होगा? नहीं, हमने यही डिस्कस किया इतनी देर तक कि स्टेरॉइड्स जो है एएस का मतलब सॉल्यूशन, उस स्टेरॉइड्स का एएस में स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं, ऐसा मानना मेरे ख्याल से सबसे सही है ना। तो जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ, सल्फासलाजीन, मीथोट्रेक्सेट, बायोलॉजिकल दवाइयाँ और ये दूसरी नई दवाइयाँ टोफास्निप, ये जो हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्टैंडर्ड दवाइयाँ हैं। स्टेरॉइड्स जो है, तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है बाय नेचर एक डिफरेंट कंडीशन है जो गठिया बात से। सो ये रीढ़ की हड्डी का गठिया और जो साधारण गठिया है अलग अलग बीमारियां हैं। तो रीढ़ की हड्डी के गठिया में स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं, लिमिटेड रोल है। मैंने कहा आंखों की प्रॉब्लम है अगर, या कोई एक जोड़ में कोई दिक्कत है, तो एक जिसको कहते हैं ना कि तात्कालिक रूप से स्टेरॉइड्स यूज किया जाता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, आंखों की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, या दूसरे जो है जोड़ों में दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसका ट्रीटमेंट जो है इम्प्रूव करना है। तो हम ये देखते हैं कि जिनका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये दूसरी दवाई से वेल कंट्रोल्ड होता है, उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो स्टेरॉइड्स का, फिर से मैं कहूंगा कि स्टेरॉइड्स का एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट में वैसे कोई रोल नहीं है। तो जो है अगर मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई जो है ओवर द काउंटर लेना नहीं, और कुछ मतलब इसको लॉन्ग टर्म लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर, जैसा आपने कहा कि स्टेरॉइड्स लेने से शुगर या बीपी ये सब की तकलीफें हो सकती है स्टेरॉइड्स लेने से, जिनको ऑलरेडी वो तकलीफ है, जिन्हें हाई बीपी है, डायबिटीज है या ऐसे हैं, क्या उनका स्टेरॉइड्स लेना सेफ है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ब्लड प्रेशर है, ऑलरेडी शुगर है, तो वो और भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो यही मैं कह रहा था कि जहाँ पे जैसे कि और जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में तो पहले ही हमने कहा है कि इसका कोई रोल है ही नहीं, लेकिन और जो बीमारियां हैं
जहाँ पे स्टेरॉइड का यूसेज जो है हम अवॉइड नहीं कर सकते, वहां पे भी हमें स्टेरॉइड यूज करना है तो हम वही प्रिंसिपल्स यूज करेंगे कि हम जो है सबसे कम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड के लिए उसको यूज करेंगे, सबसे कम डोज में यूज करेंगे, और दूसरे उनकी जो भी बीमारियां हैं उसके ऊपर जो है बड़ी स्ट्रिक्ट नजर रखेंगे। राइट। डॉक्टर पाटिल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि स्टेरॉइड्स लेने पे औरतों पे, स्पेशली कंसेप्शन, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग, या मेल फीमेल्स किसी में भी फर्टिलिटी में इश्यूज आ सकती हैं? नहीं, कोई स्पेसिफिक डिफरेंसेस नहीं है जो साइड इफेक्ट्स मेल और फीमेल में होती है। जो हमारे बोन्स की डेंसिटी है वो कम हो सकती है फीमेल्स में ज़्यादा करके, पर्टिकुलरली एक सर्टेन एज ग्रुप के बाद में। तो यूजुअली जब हम लंबे समय के लिए स्टेरॉइड देते हैं तो कैल्शियम भी देते हैं उसके साथ। तो बट जैसे हम एम्फेसिस कर रहे हैं, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्टेरॉइड का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज करते हैं, जैसे कि आई इन्फ्लेमेशन, आंख में इन्फ्लेमेशन हो गया है, या आपके पेट के अंदर बीमारियां है। और इन सब में रिमेंबर वन थिंग, व्हेन बेनिफिट इज मोर देन द रिस्क। जब जैसे अगर सपोज आप बहुत स्टेरॉइड के खिलाफ हो, आपको कभी नहीं लेना है, आपने टाटू करके लिखा है कि आई विल नेक्स्ट नेवर टेक स्टेरॉइड्स, बट अगर आपके आई में इन्फ्लेमेशन हो गया और आपने नहीं लिया तो क्या होगा? यू विल गो ब्लाइंड, राइट? सो व्हेनेवर यू कम टू द डॉक्टर, जब आप पूछते हो दवाई के क्या साइड इफेक्ट है, उसके साथ एक और सवाल साथ में रखना है हमेशा। अगर मैंने दवाई नहीं खाई तो क्या होगा, ये भी पूछना है। मुझे आज तक इंडिया में एक भी पेशेंट ने ये सवाल नहीं पूछा है। सब एक ही सवाल पूछते हैं कि दवाई का क्या साइड इफेक्ट। दवाई नहीं ली तो क्या होगा, ये भी तो पूछ के देखो कभी, देन यू विल नो द अदर साइड, राइट? तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो। और कोई खास डिफरेंस नहीं है मेल फीमेल में। और जैसे मैंने बताया, bone density is something which is important, and no particular effect on fertility. Particularly, I would like to emphasize steroids are safe during pregnancy and breastfeeding. तो बहुत बार हमें अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में, और वो सेफ माना जाता है। ग्रेट, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग डॉक्टर। डॉक्टर रविंद्रन, एक और पूछना था कि स्टेरॉइड्स बाकी के मेडिसिन के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं क्या? डू वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस कि हम क्या ले रहे हैं इफ यू आर टेकिंग स्टेरॉइड्स? हाँ, स्टेरॉइड जो है मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कॉशन तो यही होगा कि जो है स्टेरॉइड्स आप मान सकते हैं कि जो है, बिकॉज ये भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है, ये जो है पेट में अल्सर कर सकती है, एसिडिटी बढ़ा सकती है। तो ऐसी कोई भी दूसरी दवाई हो जो कि एसिडिटी बढ़ा देगी, तो वो जो है आपके पेट में अल्सर के जो है रिस्क को बढ़ा देगी। तो वो एक जो है इम्पोर्टेंट चीज जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हम कॉमनली जो दूसरी दवाइयाँ यूज करते हैं उसमें स्टेरॉइड जो है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इंटरफेयर नहीं करती। तो जैसे मिथोट्रेक्सेट हो गया या सल्फासालाजिन हो गया, वो अपना काम करती है, स्टेरॉइड अपना काम करती है। तो जो है अगर जो है मरीज हमारे बुजुर्ग हैं तो वहां पे हमें ये जो है एसिडिटी और पेट के अल्सर का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और इसके अलावा तो मेरे ध्यान में तो नहीं है। डॉक्टर प्रवीण कुछ? नहीं, नथिंग स्पेसिफिक। सो आई थिंक मे बी, मतलब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ, जैसे रूमेटोलॉजिस्ट एसेंशियली है इस पे, सो आई बिलीव कि हमें, इवन दो हम किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं या पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, हमने आके रूमेटोलॉजिस्ट को ये जरूर बताना चाहिए कि हम और क्या बाकी दवाइयाँ ले रहे हैं, देन जस्ट फोकसिंग ऑन द AS मेडिसिन। उन्हें सारी दवाइयों का ये बताना आई थिंक जरूरी है, ताकि ही कैन प्रिस्क्राइब अस अकॉर्डिंगली एंड मेक श्योर कि कुछ इंटरेक्शंस नहीं हो रहे हैं। अब बहुत ही सही पॉइंट है, क्योंकि अगर स्टेरॉइड की वजह से आपको मालूम है कि अस्थमा की ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड का यूज होता है, अब पेट की कुछ दवाइयों में स्टेरॉइड का यूज होता है। स्टेरॉइड का रूमेटोलॉजी के अलावा बहुत सारी जो है बीमारियों में यूज होता है।
तो फिर अगर पूरी बात नहीं पता है तो फिर वो ये होगा कि वो डबल नहीं हो जाए। तो और ये रिस्क जो है सारी दवाइयों के, जैसे क्या डबल कैल्शियम हो गया, या डबल जो है एसिडिटी की दवाई हो गई, या डबल स्टीरॉइड हो गया, तो ये बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से डॉक्टर प्रवीण ने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत जरूरी है कि जो मरीज जो हैं वो कुछ ऑनेस्ट लें अपने ऊपर, जो है मतलब इसको कहते तो थोड़ा सा एक सिस्टम जो है बहुत जरूरी है कि जिसमें आप हेल्प करें अपने डॉक्टर को कि जो डिसीजन मेकिंग है वो आपके माफिक हो, और आपको पता हो कि ये आपकी बीमारी क्या है, दवाई क्यों ले रहे हैं और क्यों ये दवाइयां नहीं ले रहे, और क्या दूसरी दवाइयां ले रहे हैं, बहुत जरूरी। डॉक्टर पाटिल, आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे बायोलॉजिक्स लेने के पहले हम टीबी का टेस्ट करवाते हैं, अन्य टेस्ट करवाते हैं, वैसे स्टेरॉइड्स लेने के पहले कुछ और टेस्ट करवाने चाहिए क्या? ये सुब्रता बाग ने पूछा हुआ है। नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, बट जिन लोगों का अगर वेट ज्यादा है, हमें लगता है उनको डायबिटीज होने की रिस्क ज्यादा है, अगर हम हाई डोज स्टेरॉइड यूज करने वाले हैं, जैसे कि आंख का इन्फ्लेमेशन जब होता है, तो वी आर देयर टू सेव द विजन, राइट? तो ब्लाइंडनेस ना हो इसके लिए हम हाई डोज में स्टेरॉइड यूज करते हैं, क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेनी होती है उस वक्त। तो उस वक्त शुगर बढ़ सकता है, तो बेसलाइन कभी कभी हम शुगर चेक करते हैं। इसके अलावा कोई खास टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर कोई नॉन डायबिटिक है और हमें स्टेरॉइड यूज करने ही पड़ रहे हैं हाई डोज में, तो फिर उस वक्त हम जो डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनकी सहायता लेते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पर अपना शुगर चेक करवाइए, और इफ रिक्वायर्ड वो डोज बढ़ाते हैं डायबिटीज का, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इंसुलिन यूज करते हैं। ओके, फेयर इनफ। तो जैसे हमारे एएस के मेडिसिन के लिए हम एसजीपीटी वगैरह का जैसे रेगुलर टेस्ट करवाते हैं, सो नहीं, नो स्पेसिफिक मॉनिटरिंग। नो स्पेसिफिक मॉनिटरिंग। ओके। डॉक्टर रविंद्रन, एक ने कहा है कि समझिए बोन में अगर फ्यूजन आया हो या कार्ट्रिज का इशू हो, तो क्या स्टेरॉइड हेल्प कर सकता है वो हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, या फ्यूजन रिवर्स करने के लिए, या किसी के लिए भी? नहीं कर सकता। एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, फ्यूजन हो जाता है, उसमें स्टेरॉइड कुछ नहीं कर सकता। स्टेरॉइड का ये बहुत जरूरी है कि जो डिसीज प्रोसेस है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, उसको स्टेरॉइड नहीं रोक सकता, उसको स्टेरॉइड नहीं रिवर्स कर सकता। तो शुरुआत से ही जो है ऐसी दवाइयां मतलब एक जिसको कहते हैं ना शुरुआती थोड़ा सा सिम्टोमेटिक जो है रिलीफ के लिए नहीं है ट्रीटमेंट होना चाहिए। बाद में जो चीजें आपने मेंशन की वही हो जाएगी, तो फिर ट्रीटमेंट जो आपने उससे पहले लिया वो सब फेल हो गया। तो शुरुआती से ही जो है स्टेरॉइड का कंफ्यूजन खत्म किया जाए और ऐसी दवाइयों पे फोकस किया जाए जो कि कार्टिलेज का जो है डैमेज और जो है जोड़ों का, रीढ़ की हड्डी का जो फ्यूजन है उसको रोक सके, वही है ट्रीटमेंट। फेयर इनफ। नहीं, एक मैं अभी क्योंकि समय की कमी के कारण एक सवाल पूछना चाहूंगी कि स्टेरॉइड्स लेते वक्त हेल्दी रहने के लिए हमने क्या करना चाहिए ताकि उसके साइड इफेक्ट्स हम मिनिमाइज कर सकें? ओके, तो ये बड़ा एक अच्छा सवाल है। तो सबसे जो है कि आप हमेशा स्टेरॉइड जो है अपने डॉक्टर के सुपरविजन में लें, और वो ये इंश्योर करेगा कि आप जो है सही जो है कारण से स्टेरॉइड ले रहे हैं, सही डोज में ले रहे हैं, सही मात्रा भी सही है, और उसका जो ड्यूरेशन है वो भी बिल्कुल जो चाहिए वही हो। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। जो दूसरी जो चीजें हैं उसमें आप एक हेल्दी, ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप जाएं, जो कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब हम जोड़ों के बारे में सोचे तो एक्चुअली हम जोड़ों के बारे में नहीं सोचे, अपन हार्ट के बारे में सोचे। जो हार्ट के लिए अच्छा है वो जनरली जोड़ों के लिए भी अच्छा है। तो जो है ऐसी कोई भी चीज जो आपका मोटापा बढ़ाए, ऐसी कोई भी चीज जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाए, ऐसी कोई भी चीज जिससे आपके शुगर होने की या आपको शुगर है तो उसकी जो है उसको बढ़ा दे, उनके बारे में ख्याल रखिए। हमारे मसल की हेल्थ, हमारे बोन की जो है जो ताकत है वो कम नहीं हो, उसके लिए हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये सारी जरूरी चीजें हैं जो कि हार्ट को भी हेल्प करती है और सारी जो है
और दूसरे जो हमारे बॉडी के अवयव हैं उसको भी हेल्प करती है। नींद भी बड़ी अच्छी आती है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। एक्चुअली अभी समय का कमी हो रही है, इसलिए हम अभी तो और सवाल नहीं ले पाएंगे, लेकिन वॉरियर्स आपका जो कीमती समय है और आपके जो सवाल हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे चल के इन सवालों का जवाब जरूर देंगे। थैंक यू डॉक्टर रविंद्रन एंड डॉक्टर पाटिल कि आपने हमारे डाउट्स क्लियर किए। आज का प्रोग्राम हम अभी यहीं वाइंड अप करते हैं। मैं डॉक्टर धर्मानंद, डॉक्टर रविंद्रन एंड डॉक्टर पाटिल, इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज हमारे लिए ये समय निकाला और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को एड्रेस किया। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर रविंद्रन एंड डॉक्टर पाटिल जो हैं वो अपने कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स दें हमारे लिए। धन्यवाद एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर्स, and धन्यवाद एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी, प्राची मैडम, डॉक्टर प्रवीण एंड डॉक्टर धर्मानंद, और आप सभी लोगों को ये जो है ये कंफ्यूजन और ये अवेयरनेस का सिलसिला जो है, ये इसको सिलसिला कहते हैं क्योंकि इसमें ये शुरुआत होती है, फिर पड़ाव आते हैं और फिर जो है चीजें जो बार बार बताना पड़ती है। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे मौका मिला, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद। So thank you everyone, धन्यवाद। और हम डॉक्टर विनोद रविंद्रन और डॉक्टर धर्मानंद को धन्यवाद कहना चाहेंगे, हमारे फर्स्ट प्रोग्राम में शामिल हुए। और डॉक्टर विनोद रविंद्रन ने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया स्टीरॉइड्स के बारे में, और ही इज़ अथॉरिटी नॉट जस्ट फॉर द पेशेंट बट इवन फॉर द डॉक्टर्स। उन्होंने काफ़ी अभ्यास किया है स्टीरॉइड्स के बारे में। हमने देखा कि उन्होंने बुक भी लिखी है और काफ़ी सारे आर्टिकल भी पब्लिश किए और बहुत टॉक्स भी दिए हैं स्टीरॉइड्स के बारे में, इसीलिए हमने उनको इनवाइट किया था आज। और हमें ये आगे चालू रखना है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए सुझाव भेजिए, नेक्स्ट मंथ में हम वापस आएंगे, बट वी कैन नॉट डू दिस विदाउट योर सपोर्ट। आप लोग जितना एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे उतना हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा और हम और एक्टिविटीज करते जाएंगे। बैकग्राउंड में काफी वर्क होता है, बहुत सारे लोग जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी के ट्रस्टी है, मेंबर्स है, इसके पीछे काम करते हैं, और तब ये प्रोग्राम आपके सामने बनता है। तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए प्लीज कीप सेंडिंग योर क्वेश्चंस, सेंडिंग योर सजेशंस। अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है तो प्लीज कम फॉरवर्ड। वी नीड मोर पीपल हु कैन वर्क विथ अस। एंड इस इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सबको। थैंक यू, धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंथ। ओवर टू यू प्राची। थैंक यू डॉक्टर रविंद्रन, थैंक यू डॉक्टर पाटिल, एंड थैंक यू इप्का हमारे साथ इस जर्नी में रहने के लिए। अभी वॉरियर्स में आपसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे डॉक्टर पाटिल ने कहा कि हमारे वेबसाइट जो अभी आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, aswelfare.org पे जाइए या हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कीजिए। वो टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड भी हमने डाला हुआ है ताकि आप स्कैन कर सके उसे। इनफैक्ट हमारे YouTube चैनल पे भी हमने बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हुए हैं, इसीलिए प्लीज हमारे चैनल पे जाइए, उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशंस अगर आपको पाने हैं तो जैसा आप जानते हैं आप बेल आइकन दबाइए। हम आपसे उन टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज निश्चिंत होकर हमारे वेरियस सोशल मीडिया पेजेस पे कमेंट कीजिए या वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स या टेलीग्राम ग्रुप्स पे मैसेज कीजिए। आप इनफैक्ट मिस्टर भूषण घाटे को भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, बहुत वॉरियर्स तो उन्हें जानते ही हैं, उनका नंबर भी अभी हमने शेयर किया हुआ है। जो टॉपिक्स सबसे ज्यादा चर्चा में होंगे हम उन टॉपिक्स पे आने वाले महीनों में वेबिनार्स रखने का प्रयास करेंगे। फिर से मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने आकर हमारी इस कोशिश को सपोर्ट किया। हम उम्मीद रखते हैं कि आगे के वेबिनार्स में आप सबसे फिर मुलाकात होगी और कई नए वॉरियर्स जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्लीज स्प्रेड द वर्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जय हिंद। थैंक यू। बाय बाय। बाय।